সবুজ শক্তি সংবাদে আপনাদের স্বাগত। সাথে রয়েছি আমি শবনম। দেখে নেব এই মুহূর্তে আমাদের হাতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র ভবনে রাজ্যভিত্তিক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের ইনচার্জ অজয় কুমার জি এবং ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিৎ সিনহা এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব গোপাল রায় সহ অনেকেই। আগরতলা থেকে রাকেশ দাসের রিপোর্ট, সবুজ শক্তি। ট্রেনিং শুরু করেছি। এই ট্রেনিংটা আজকে শুধুমাত্র আপনারা আপনাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন, দফায় দফায় আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন এরিয়াতে আবার ডিসকাশন হবে, ট্রেনিং হবে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক যারা দায়িত্বশীল, নির্ভরশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং আদর্শবাদী মানুষ তৈরি করতে হবে। কংগ্রেস আজকে ক্ষমতা নেই, কালকে ক্ষমতায় আসবে, কিন্তু কংগ্রেসের কর্মসূচি সঠিকভাবে মানুষের কাছে রূপায়ণ করতে হয়, সেই সকল ট্রেন লোকের প্রয়োজন আছে। হাওয়া আসবে, আবার হাওয়া চলে যাবে। হাওয়াকে ধরে রাখার জন্য আমাদের আদর্শবান কর্মীর দরকার আছে। যারা এসছেন আমি জিজ্ঞেস করব, 2023-এ আমরা কি সরকার করতে চাই না চাই না? সরকার করতে চাই তো? বিজেপিকে পরাস্ত করতে চাই? তাইলে তৈরি থাকুন, আমার মনে আছে থেকে সেই মদত দিতে পারবো না, কিন্তু আপনারা এগিয়ে আসতে হবে। পারবো না কথা বলবেন না, পারবো না কথা যদি মুখে না আসে কংগ্রেস কর্মীরা, পারতে হবে, চ্যালেঞ্জ করতে হবে। বিজেপি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামনে মোকাবিলা করতে হবে, তাহলে একটা শেষ হবে। এবারে নির্বাচন, মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন। আগরতলাতে আমরা যাদের দাঁড় করিয়েছি এখনো 33 জন আমাদের প্রার্থী আছে। সব জায়গাতে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক শহরে তো আমরা কোনো অপোজিশনই দিতে পারি না। বিজেপি এসডিএম অফিস, রিটার্নিং অফিসে ঘেরাও করে রেখেছে। উদয়পুর বা অন্যান্য জায়গায় অনেক জায়গাতে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের সংগঠনের মজবুত থাকে, ট্রেন ওয়ার্কার থাকে, নিবেদিত প্রাণ থাকে, তাহলে সম্ভব হতো। হয়তো বদুর জমানদারা আছে, আমার কংগ্রেস কৈলাসর নেতারা, কৈলাসর কেন পারল? 17-র মধ্যে 17রা দাঁড়িয়েছে এবং লড়াই করে আমরা কৈলাসর মিউনিসিপ্যালিটি দখল করতে হবে। আজকে যারা এসছেন কৈলাসরে, তারা গেছে, আমি এই ফেস করতে হবে, ফেস করে সাহসিকতা থাকতে হবে, মোকাবিলা করার সাহসিকতা থাকতে হবে। কত কেস দেবে? সুতরাং আমি দীর্ঘ বলবো না, আমার বিশ্বাস যারা এসছেন না, প্রত্যেকে কালেক্ট করবে। 2 নম্বর, मैं बता रहा हूं, बदरुज्जमान साहब ने सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बहुत सारे बातें बोलेंगे यार, मेरे सुमन लश्कर जी कई बार थे, मैं बात कर रहा था, सुबह कोई लोग आए थे, हम तब बोल रहे थे कि इसके साथ गठबंधन, उसके साथ गठबंधन। पॉलिटिक्स बहुत ही सिंपल। यदि आप मिलोगे, खास तौर से एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन में थोड़ा सा सरकार का हवा ये सब है, इलाका बड़ा। एमएलए इलेक्शन में यदि आदमी हर घर, और म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन में, मैं इसलिए आप लोग सब लोग को इसलिए मैं समझाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि जब मैं चुनाव जीता था तो मेरे विरोधी के सबके जमानत जब्त हो गए, ठीक है। जब मैं हारा था चुनाव तो मुझे 1,25,000 वोट जीतने से ज्यादा मिला। हार जीत होती है, लेकिन पब्लिक जो है ना कभी धोखा नहीं देती, जनता धोखा नहीं देती। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर आप क्यों बोलते हो कि धोखा हो रहा है, कि कम्युनल हो गया देश, बीजेपी क्या कर रही है? 50,000 है साहब बस। आज अगर कोई डिसाइड कर ले कि हमको विधायक बनना है, और 10,000 घर का मतलब है कि रोज 100 घर घूमना है, 100 घर बस।
और गांव में अगर सो जाओगे 1.5 साल, हर रात को अगर आज से अगर विधायक बनना है तो एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला है, गांव में सो जाओ, कोई रिश्तेदार होगा जब नहीं तो गांव के मंदिर के आंगन में सो जाओ, पब्लिक आपको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि हम सोना नहीं चाहते हैं, वहां पर ठंडा पानी में नहीं नहाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पैसा चाहिए, चुनाव कैसे होगा? जो आदमी पब्लिक का काम करेगा, हो सकता है इस चुनाव में हारे, दिल में बैठेगा अगले चुनाव जीते। ये बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया, फेसबुक को, जो गांव के आदमी जिसके साथ तुम बैठोगे, फोन करोगे, डीसी को, एसपी को, थानेदार को फोन करोगे, वो आपको पक्का सपोर्ट करेगा। तो पहले तो ये क्लियर करें, कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि हमको मेहनत करना है कि नहीं करना। मेहनत नहीं करना फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो समस्या ही समस्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बीजेपी बड़ी है, कैसे जीतेंगे, टीएमसी आ गया, कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि अगर आप घूमोगे, इसलिए मैं सभी के लिए एक चीज मैंने बिरंजीत सिन्हा साहब और राहुल गांधी जी को, सोनिया जी का मैसेज है, जिसको भी चुनाव लड़ना है, यदि ये चुनौती स्वीकार करोगे तो कुछ भी हो जाए हम आपको टिकट दिला देंगे, कुछ भी हो, यदि मेहनत करोगे। 1 रुपया अगर आपके बैंक अकाउंट में भी नहीं है, लेकिन आज से 1 साल के लिए अगर आप रोज रात को निकलोगे और हर गांव में सो जाओगे और दूसरे दिन फिर से घूमोगे, 1 साल के लिए त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन ऐसे पूरे त्रिपुरा में 60 आदमी मिलना ही मुश्किल है, नहीं मिलेगा। अगर बिरंजीत सिन्हा साहब को ऐसे 30 आदमी मिल जाए तो क्रांति हो जाएगा पार्टी। 30 भी मिलना मुश्किल है, मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मेहनत ही नहीं करना है। आएंगे बोलेंगे ये मुश्किल है, तो पहला काम ये है आज का ट्रेनिंग में कि पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मुश्किल भी नहीं। क्या है नेतागिरी? लोग से मिलिए, उनका दुख दर्द में शामिल हो जाइए, बात सुनिए, उनके लिए फोन उठाइए। अगर काम नहीं होता तो बिरंजीत सिन्हा साहब को बोलिएगा कि सर राशन कार्ड नहीं बन रहा है, थोड़ा मदद कर लीजिए, थानेदार तंग कर रहे हैं, मदद कीजिए, हो गया काम। मैं चाहूंगा कि हम बांग्ला में भाषण नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद अगले 3-4 बार के बाद उसके बाद बांग्ला में भाषण देने की हम सक्षम हो गए। आदरणीय बिरजीत जी, गोपाल राय साहब, मंच पर उपस्थित सभी और हमारे सभी साथीगण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, पहले तो मैं बिरंजीत जी और उनके टीम और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चुनाव है सामने, म्युनिसिपल चुनाव है और लोकल बॉडी चुनाव है, उसके बावजूद भी त्रिपुरा के हर कोने से लोग आए हैं। बिरंजीत जी ने बहुत सारी बातें रखी, उस पर आप सब लोग को सोचने की आवश्यकता है। नित्य गोपाल जी ने भी कुछ बातें रखी है, अमृतलाल जी ने, फिर उसके बाद शानदार तरीके से प्रशांत सेन जी ने रखा है, और आखिरी में गोपाल चंद्र राय जी ने भी पूरी तरह से मामले के बारे में आपको जानकारी दी। हिंदी में बोलने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? देखिए, सच्चाई ये है कि त्रिपुरा की आबादी 30 लाख के आसपास, उसमें 60 विधानसभा है, तो एक विधानसभा में 50,000, करेक्ट? सही है ना? ठीक। 50,000 मतलब है कि 10,000 परिवार, करीब करीब। ये भी गलत है कि सही है? 10,000। यदि कोई लड़का या लड़की अगर विधायक बनना चाहता है
और अगर आज उसने ये निर्णय लिया कि हम बनेंगे और अगले 1 साल तक घर नहीं लौटेगा, गांव में सोएगा, तो এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন আমাদের সবুজ শক্তির পর্দায়। ধন্যবাদ।